आज की टॉपिक में हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिटेल में सीखेंगे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारे पास जो सिग्नल वेव है, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं, उसको हम सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी या कैरियर वेव के ऊपर। ऐसा करने में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमारी जो रिजल्टेंट, जिसको कहेंगे हम मॉड्यूलेटेड वेव, उसकी वेव फॉर्म ऐसी होगी जिसमें एम्पलीट्यूड जो है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का, वो चेंज होगा इन अकॉर्डेंस विद द, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग। और उसकी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम डेफिनेशन से देख लेते हैं। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम बोलते हैं जिसको, सिग्नल वेव जो हमारा मैसेज लेकर जा रहा है, सिग्नल वेव को हम मॉड्यूलेटिंग वेव भी बोलते हैं। इट इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव। हाई फ्रीक्वेंसी वेव कौन सी है? हमारी कैरियर वेव, क्योंकि वो कैरी करके ले जा रही है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह, in such a way that the frequency of modulated wave कौन सी है? हमारी resultant wave, it is same as that of the carrier wave। इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी हमारे पास फाइनली, जो सुपर इम्पोज होने के बाद वेव आएगी, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी? कैरियर वेव के। लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी करेगा, चेंज होगा एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि हमारा सिग्नल वेव है, उसके अकॉर्डिंग। जो हम लोगों ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में लर्न किया है, इसको हम वेव फॉर्म में भी देखते हैं। ईएम हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की वेव को ले रहे हैं और वेव फॉर्म ऐसी है। तो दिस इज आवर सिग्नल वेव या मॉड्यूलेटिंग वेव। ये हमारी कैरियर वेव है। अब हम वेवफॉर्म कैसी बनाएंगे रिजल्टेंट की? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। वो क्या कहती है कि जब हम ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो इसका एम्पलीट्यूड है वो सिग्नल वेव के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो अब इन दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो वेव फॉर्म आएगी वो ऐसी आएगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है इसका, उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए डिक्रीज करेगी। तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेवफॉर्म है। तो ये हमारी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। Now we are going to derive the mathematical expression for the amplitude modulated wave. For that, let EC is the instantaneous voltage of carrier wave and EM is the instantaneous voltage of signal wave or the modulating wave. So the expression for these waves will be, for the carrier wave it will be EC, mark it as equation number 1, and waveform for the modulating wave is
Now, here EC and EM, these are the amplitudes of this carrier wave, and this is for the modulating wave. And omega C and omega M, these are the angular frequencies of these respective waves, where EC and EM are amplitudes and omega C and omega M are angular frequencies of carrier wave and modulating wave respectively. Now, the resultant modulated wave, by superimposing these two waves according to the amplitude modulation, will be such that the angular frequency of the carrier wave remains omega c in the resultant wave. Only the amplitude of this wave will be varying according to the modulating wave. That is how we can write down, let E is the resultant wave, then this waveform is written like this. Mark it as equation number 3. Here, A is the amplitude of the resultant modulated wave, and frequency as per the definition remains omega c, where A is the amplitude of the modulated wave. This is equal to now putting the value of the amplitude of modulated wave in its equation, we will get now. Here we will introduce one more factor known as modulation index or modulation factor or amplitude modulating factor. This is equal to ratio of the amplitudes of modulating signal to the carrier wave. From here we get EM is equal to ME EC. Now, putting this value in the above equation, we have E equal to EC sine omega CT plus now we'll be using trigonometry to solve this expression using trigonometry relation, that is 2 sine A sine B. It is equal to cos A minus B minus cos A plus B.
So the above equation is written as we have multiplied and divided by 2. Using the relation, this thing can be written as this is the final expression for the amplitude modulated wave. This equation consists of three waveforms. The amplitude of the first waveform is EC and the frequency, say nu, C is given by 2 pi. How I have written this? We know about one relation. Angular frequency is equal to 2 pi nu, the frequency. From here we get frequency is equal to nu up equal to 2 pi upon angular frequency. So we get this relation. Now this is our modified waveform. This is also the modified one. Now for this waveform, the amplitude is MA EC by 2. Nu C minus nu M. And for this also, we are having amplitude the same MEC by 2 and the frequency will be given by this is our lower side frequency. And this is the upper side band frequency. Now, knowing about the amplitude and the frequency of amplitude modulated wave, we can plot the frequency spectrum of amplitude modulated wave. This side will plot amplitude and here we are having the frequency. One of our amplitude is ME EC by 2 and the other one is EC. Suppose here our LSB nu C minus nu M is lying. So this is our LSB line, this is our frequency of the carrier wave and this is our upper side band is lying. The signal is contained only in these side bands and this frequency nu C of the carrier wave is filtered out before the receiving antenna. So these are the important conclusion. The
signal is contained in sidebands only. Carrier wave is filtered out before receiving antenna. Now we are going to calculate the bandwidth of amplitude modulated signal. The amplitude modulated signal AM is lying between the frequency Fc plus Fm. This is the upper side band frequency, and Fc minus Fm. This is the lower side band frequency. The signal is contained within these frequencies, and for bandwidth, the formula is upper frequency minus lower frequency. So we'll subtract Fc plus Fm and we get so bandwidth comes out to be equal to twice of frequency of the modulating signal. Hence we conclude bandwidth of amplitude modulating wave is twice the frequency of modulating signal. अब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग फैक्टर या मॉड्यूलेशन इंडेक्स, जो कि हमने अपनी डेरिवेशन में इस फैक्टर को यूज़ किया है, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव की जो एम्पलीट्यूड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं. द एम्पलीट्यूड्स ऑफ मॉड्यूलेटेड waves, say E maximum and E minimum. They are given by क्योंकि ये करियर वेव का एम्पलीट्यूड है और ये मॉड्यूलेटिंग का है, इन दोनों का सम हमारे पास मैक्सिमम होगा मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड को लेकर, और मिनिमम होगा इन दोनों का डिफरेंस. इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मार्क कर लेते हैं. और इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास EC आ जाएगा E मैक्सिमम प्लस E मिनिमम बाई 2, और एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ जाएगा E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम ओवर 2. इन दोनों चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, दैट इज डिनोटेड बाय MA, और इसको हम लेते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल. जो हमारे पास ऊपर वैल्यूज आई हैं इनकी, तो उनको अगर हम पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम टू E मैक्सिमम प्लस E. These are the difference of maximum amplitude to the smallest one, और ये हमारा maximum amplitude और minimum amplitude का सम है. तो यहाँ से हमारे पास मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो आ रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये तो हमारी मैथमेटिकल डेरिवेशन है. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ
modulation index. It is basically tells us about the extent, ये उतना बताता है हमें कि किस एक्सटेंट तक हमारी जो करियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो चेंज किया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने। जितना अच्छा उसने उसको चेंज किया होगा उतना ही सिग्नल वेव रिसेप्शन पर हमारी क्लियर होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी। जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा सिग्नल जो ट्रांसमिटेड है वो डिस्टॉर्टेड होगा, क्लियर नहीं होगा। एमए जो है इट टेल्स अस द एक्सटेंट अप टू विच द amplitude of carrier wave is changed by modulating। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा था? सिग्नल वेव वाला, जहां जो हमारा मैसेज इसमें कंटेन होता है। इट टेल्स अस द एक्सटेंट अप टू विच, कितने एक्सटेंट तक हमारी करियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज किया है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ने। तो इसका मतलब क्या है कि एमए बताता है अबाउट द क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ of transmitted signal। जितनी हमारी ये वेरिएशन एफिशिएंट होगी, जितनी बेटर होगी, उतना ही हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है उसकी क्वालिटी या स्ट्रेंथ अच्छी होगी। एमए की वैल्यू, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ये रेशो करियर वेव का एम्पलीट्यूड और जो हमारी सिग्नल वेव है उसके एम्पलीट्यूड, इन दोनों का हम लोग रेशो ले रहे हैं और हमारे पास जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू कम है डिनोमिनेटर से, तो एम ए जो है हमारा जनरली लेस देन 1 होता है। इफ एम ए इज स्मॉल, अगर एम ए छोटा है हमारा, उस केस में क्या होता है कि हमारी ये जो वेरिएशन है करियर वेव के एम्पलीट्यूड की ये अच्छे से नहीं हुई है। इफ एम ए इज स्मॉल, द amplitude variation of carrier wave is less, और उससे क्या होगा, जो हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो वीक होगा। द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज वीक। अगर हमारा एम ए जो है ये इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि हमारी एम्पलीट्यूड वेरिएशन अच्छी हुई है और हमारा जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो अच्छी स्ट्रेंथ का है। इफ एम ए इज हैविंग greater values then the amplitude variation of carrier wave is good and transmitted signal will be clear and having good strength। पर ये जो दोनों केसेस हमने स्टडी किए हैं ये लेस देन 1 का ही केस है। अगर कुछ केसेस में हमारा एम ए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो उस केस में हमारी ओवर मॉड्यूलेशन हो गई है एम्पलीट्यूड ऑफ करियर वेव की, और वहां पे हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होगा। इफ एम ए इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स देयर इज
over modulation in the amplitude of carrier wave, and the transmitted signal is distorted at reception. तो ये था हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस।